ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ ایک شہزادہ تھا مصر کا، اسے جی ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو، خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا، پری کا نام تھا بدر جمال۔ جی بدر جمال پری جو تھی بہت خوبصورت پری تھی اور سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ کوئی کاف جو ہے روس میں اور چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں، وہاں پہ جو ہے پرستان ہے، وہاں سے یہاں 7 سہیلیاں آئی ہوئی تھی یہاں نہانے کے لیے، 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ شہزادے نے جب اس پری کو یہاں پہ نہاتے ہوئے دیکھا، ناران کا گانا آ کے اور اس کی سراؤنڈنگز میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وقت ضرور نکالیں اپنے لیے اور اپنی وائف کے لیے، ٹھنڈے علاقوں میں آئیں، یہاں پہ آ کے تیز سانس لیں، اچھی ہوا اپنے اندر لیں یہاں پہ اور انجوائے کریں یہاں پہ آ کے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہے اور اچھا ایریا ہے کہ یہاں پہ آ کے تو بہت ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے۔ جھیل سفر ملوک کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا، ملکہ پربت ہے، اس کو آج تک کوئی سار نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نظارے، یہ دیکھیں نا، ایک طرف پہاڑ ہیں، سفید پہاڑ ہیں، کالے پہاڑ ہیں، سبزہ ہے، پانی ہے۔ یہ سامنے ملکہ پربت پہاڑ ہے، یہ سارے برف ہی برف ہے، بہت سردی اور بہت اچھا علاقہ ہے یہ۔ ابھی پاکستانی پری دوسری پریوں کو پتہ نہیں چل رہا کہاں گئی ہیں وہ۔ حلیمہ سلطان پہنتی ہے اس کو بنانے میں تقریباً 5 دن لگتے ہیں اور 7000 روپے اس پہ خرچہ آتا ہے۔ بائک پہ ہے پشاور سے۔ جی یہاں کے جو ویوز ہیں، ایک سائڈ پہ جھیل سفر ملوک ہیں اور ایک سائڈ ملکہ پربت ہے، گلیشیئرز ہیں، یہ جنت کا نظارہ کرتے ہیں۔ زیادہ کور کر کے نہ آتا ہے ورنہ گرمی لگے گی۔ مجھے یہاں پہ آ کے بہت ہی اچھا لگا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین پہاڑ ہے، یہاں پہ وائٹ پہاڑ ہیں، اس طرف بلیک پہاڑ ہے، یہ سیف الملوک جھیل ہے، بہت ہی اچھا اس کا ویو ہے، بہت ہی اچھا۔ رب کی قدرت یاد آ گئی ہے، بہت اچھا ہے یہ، اس کے علاوہ الفاظ نہیں بیان۔ اپنے اندر لیں یہاں پہ اور انجوائے کریں یہاں پہ آ کے۔ تھینک یو جی میرا نام ارسلان حیدر ہے اور میں چنیور سے آیا ہوں۔ میرا نام فرزانہ ہے، میں سیالکوٹ سے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ویو ہے اور اچھا ایریا ہے۔ تو یہاں کے آنے کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر باقی اوورال دیکھا جائے تو اچھا انفراسٹرکچر ہے، کھانے پینے کی سہولتیں ہیں، مسجد ہے ساتھ، اور جو راستہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑی سی امپرومنٹ ہونی چاہیے۔ ڈرائیور سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ جو برف پڑتی ہے اور پتھر وغیرہ پڑتے ہیں تو راستہ جو ٹھیک راستہ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، تو اس کا سولوشن گورنمنٹ کو چاہیے کچھ کرنے کا۔ باقی جو ویو ہے بہت پیارا ویو ہے لیک کا، اور جو ٹورسٹ حضرات ہے جو اس طرح کی سائٹس دیکھنے کے دلدادہ ہے، جو شوقین حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آئے، ویو دیکھے، ریلیکسیشن فیل کرے، اچھا لگے گا ان کو۔ شکریہ۔ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جی، دیکھیں ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے جب آپ سفر کر آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان ایریاز کو ویوز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی تھکن ہے، تھکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علاقہ ہی اس طرح کا ہے، وہ آپ جب آپ کو نظارے نظر آتے ہیں، جب یہ ویو دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کو جو ساری تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بہت پیارے ویو ہے اور سبھی کو آنا چاہیے یہاں پہ، یہ نظارے دیکھنے چاہیے۔ میں سے یہی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ بجٹ نکال کر، ٹائم نکال کر آپ یہاں وزٹ کریں، آئیں یہاں پہ یہ نیچر کو دیکھیں نیچر کو دیکھنا ہی اصل انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، جو انسان ریلیکسیشن فیل کرتا ہے۔ جو میدانی ایریا کے لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو آنا چاہیے، یہاں پہ دیکھنا چاہیے، ویو دیکھنا چاہیے، تھوڑی سی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، بندہ سکون میں آتا ہے۔ یہ بہت سیف علاقہ ہے، صرف روڈز کی یہاں پہ مسئلہ ہے، تو وہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی ڈیولپمنٹ کر دے۔ باقی یہاں پہ آ کے تو بہت ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں، اور بہت سیف علاقہ ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، تو کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، اور باقی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمد رمیز میرا نام ہے، وہ فیصل آباد سے آئے ہیں، بچوں کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ۔ یہ علاقے بہت اچھے ہیں، بہت مزہ آیا،
वहाँ पे हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ कारोबार की टेंशन, महंगाई, गर्मी इतनी ज़्यादा, माइंडली तौर पे इतने अपसेट हो गए थे, तो सोचा चले रिलैक्स होने के लिए बच्चों को लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं। 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ की खूबसूरती देख के वैसे ही हर चीज़ ही भूल गए हैं, महंगाई वगैरह हर चीज़ जो भी है वो एक अपनी साइड पे, लेकिन अल्लाह ताला के खूबसूरत नज़ारे। ये देखें ना, एक तरफ पहाड़ हैं, सफ़ेद पहाड़ हैं, काले पहाड़ हैं, सब्ज़ा है, पानी है, हर चीज़ है। अल्लाह ताला की कुदरत देख के इंसान वैसे ही अपना रब का जितना शुक्र अदा करे कम है। मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि सियाहत को ज़रा प्रमोट करें, आपस में भाईचारा रखें, सब मिलकर एक मुल्क के लिए जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। हम सब आपस में भाई हैं, जो हमने कर लेना है वो हमने कर लेना है, बाहर से आके कोई इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस इलाके में बहुत अच्छा है, मेरी सेल की जॉब है, मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत आउट क्लास हैं, बहुत ताउन करते हैं, जैसे कहें वैसे, और बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। किराया वगैरह का तो नहीं कह सकते, हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है, जब चीज़ें महंगी होंगी तो फिर बाकियों का भी हक है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ सियाहत के लिए पैदा कर सकते हैं ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा आए। रोड बहुत गंदे हैं, रोड अगर उसको बना देंगे तो इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है, लोग भी ज़्यादा आएंगे। रोड बहुत टूटे हुए हैं, रोड के लिए शद ज़रूरत है काम करने के लिए। तो रोड का थोड़ा सा मसला है बाइक पे, लेकिन जो है तो इतना कोई मसला नहीं है। जीप जो है, जीप भी आते होते हैं और बाइक भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है और मैं जीप ड्राइवर हूँ। और ये झील सफ़र मुलूक है। ये झील सफ़र मुलूक की गहराई का अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा सका, और ये सामने मलका पर्वत है, इसको आज तक कोई सार नहीं कर सका। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से सिलसिला जारी है इस तरह। तो ये लोग आते हैं सीज़न में, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ रिज़्क़ हमारा वो बचता है। 3500 रुपये हमारा सरकारी किराया है। खूबसूरती तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको नज़र आ रही है, खूबसूरती अल्लाह ताला ने इसको जन्नत बनाया हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मरी की तरह नहीं है, मरी वाले तो बैठने के भी आपसे पैसे लेंगे, अगर किसी को रास्ता बताएंगे उसके भी हैं। और कराची लाहौर से लोग आते हैं, बहुत प्यारी जगह इसको देखने के लिए आते हैं। ये सामने मलका पर्वत पहाड़ है, ये सारे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत सर्दी और बहुत अच्छा इलाका है ये कराची और लाहौर के लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, 500-200 वाला राउंड लगाते हैं कि इस तरह इनको घुमाते फिरते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। गर्मी में मौसम में ये कहता हूँ सर जी, ये जो झील सफ़र मुलूक पे जिसको गर्मी दूर करनी हो तो आके यहाँ गर्मी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ से जो है आके जितनी बनेने हो, जितने उनके पास कम्बल होते हैं वो अपने साथ लपेट लेते हैं, यहाँ से नीचे तो उनको गर्मी शुरू हो जाती है। जी सर, ये मेरा घोड़ा जो है, ये मैं लाहौर से लेकर आया हूँ। यहाँ लोग कहते थे परियाँ, मुझे 17-18 साल हो गए, मैंने परियाँ देखी नहीं। वैसे लोग आज का शुगर लगाते हैं, हम उनका साथ कहते हैं चलो दूसरी परियाँ नहीं तो यही परियाँ से जो नीचे से आ रही हैं। जी, अभी पाकिस्तानी परी, दूसरी परियों को पता नहीं चल रहा कहाँ गई हैं वो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत लोग हैं माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद शाह है, मैं इस वक्त झील सफ़र मुलूक पर खड़ा हूँ। ये टोपी के बारे में ये ड्रामे से ली हुई है हमने टोपी, अर्तगोल ड्रामे से। हलीमा सुल्तान पहनती है इसको बनाने में तकरीबन 5 दिन लगते हैं और 7000 रुपये इस पर ख़र्चा आता है। और ये लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ के जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं। और इसको हम 50 रुपये में इनके सर पे रखते हैं, ये पिक्चर निकालते हैं मर्ज़ी से, फिर हम वापस ले लेते हैं। सर ये सेल करने के लिए नहीं है, इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सेल नहीं करते, किसी को भी नहीं देते ये, और कहीं से मिलती भी नहीं है। ये हैंडमेड हाथ से बनाते हैं हम। सर बहुत अच्छे लोग हैं, जैसा हमें उनके साथ बर्ताव करेंगे वो हमारे साथ भी ऐसा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बहुत अच्छे लोग आते हैं और उनको हम अच्छी तरह गाइड करते हैं। ये है सर, कचरा ना ही करें, ना फेंकें गन वगैरह की, इसकी सारी खूबसूरती चली जाएगी, ठीक है। सब जो भी आएँ यहाँ पर साफ़ सफाई रखें, और हम भी कोशिश करते हैं साफ़ सफाई रखने की। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, KDA वालों के हैं, वाइल्ड लाइफ वालों के लोग हैं, सफाई करते हैं, और हम लोग लोकल लोग भी सफाई करते हैं। सब सफाई करें, सफाई का जितना ख्याल रखेंगे ये इतनी खूबसूरत होगी। मुझे 7 साल हो गए हैं सर यहाँ पर। जी आती हैं, दिन में बहुत सी परियाँ आती हैं, रात को कोई नहीं देखी हमने भी। जी ये पाकिस्तानी परियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं।
जनाबों मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ। मुझे यहाँ पे 25 साल हो गए, मैं यहाँ लोगों की झील के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ज़ाहिर एक बंदे ने यहाँ और ये झील देखने आते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, उन्होंने यहाँ की अगर मालूमात न सुनी तो झील देखने का फ़ायदा क्या हुआ। जनाबों ये बहुत अच्छी झील है, बहुत लोग यहाँ आते हैं, रोड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लोग भी ठीक हैं, बहुत बड़े खलाकी लोग हैं यहाँ पे। कोई इधर ये परमन इलाका है और यहाँ पे कोई नुसरबाजी वगैरह कुछ ऐसा वगैरह कुछ भी लोग भी नहीं है। जनाब ये एक मरतबा का जिक्र है कि एक शहज़ादा था मिस्र का, उसे जी एक दफ़ा ख्वाब आया, इशारा हुआ शहज़ादे सैफ को। ख्वाब में उसने ये वाली झील को भी उसने देखा और परी को भी देखा। परी का नाम था बदर जमाल। जी बदर जमाल परी जो थी बहुत खूबसूरत परी थी और सब परियों की मलका और शहज़ादी थी। सुबह उठकर शहज़ादे सैफ ने अपने वालिद को ये ख्वाब सुनाया। वालिद उसका जो था जी मिस्र का बादशाह था। बादशाह ने कहा कि बेटा वो परी जो है नारी है, नारी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। नारी मतलब होता है आग वाली, इसलिए आदमजात को नज़र नहीं आती। शहज़ादे ने अपने वालिद को कहा कि मुझे परी मिले या न मिले, मैं झील देखने ज़रूर जाऊंगा, मुझे इजाज़त दे दो। वहाँ से इजाज़त मिली है, शहज़ादा वहाँ से निकला मिस्र से। आते आते रास्ते में से कोई अल्लाह वाला एक मिला, वली बुज़ुर्ग। उस वली बुज़ुर्ग का वहाँ रास्ते में मज़ार था, कोई गैबी वली था वहाँ रास्ते में बैठा हुआ था। शहज़ादा वहाँ से गुजर कर आ रहा था झील की तरफ, झील ढूंढ रहा था। वली ने शहज़ादे से पूछा, क्या शहज़ादे आप किस लिए यहाँ जंगल में घूम रहे हो, जा रहे में? उसने कहा कि मैं तो एक झील है, झील देखने जा रहा हूँ। उस वली से जी फिर उसे एक सलेमानी टोपी मिल गई। टोपी के बाद उसके कब्ज़े में जिंद आ गई जन्नत। जन्नत शहज़ादे को वहाँ से उठाया मिस्र से, यहाँ लाकर उतारा ये झील पर। यहीं पर शहज़ादे ने झील देखी, झील की पहचान की। उसने कहा कि झील तो यही है जो मैंने ख्वाब में देखी है, अब मुझे परी जो है वो यहाँ कैसे मिल सकती है? जिन्होंने कहा कि उसके लिए चेला करें और इबादत करें। शहज़ादे ने यहीं पर 40 दिन चेला काटा, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन की बाद उसने दुआ मांगी अल्लाह से। उसी दिन में कहते हैं कि वो परियाँ यहाँ नहाने के लिए आ रही हैं कोई काफ से। तो कोई काफ जो है रूस में और चेचनिया की तरफ है, रशिया में, वहाँ पे जो है परस्तान है। वहाँ से यहाँ 7 सहेली आई हुई थी यहाँ नहाने के लिए। 8वीं जो थी वही बदर जमाल जो उसने ख्वाब में देखी थी। शहज़ादे ने जब उस परी को यहाँ पे नहाते हुए देखा, जिना को भेजा, जिन खामोशी से पहुँचे। परी की पारी यहाँ से उठाई तो शहज़ादे सैफ को मिल गई। दूसरी सहेली भाग गई, वो बदर जमाल यहीं रह गई। शहज़ादा उसके सामने आ गए। दोनों परी और शहज़ादा इस नारान के तरफ चले गए, रवाना हो गई। दूसरी सहेली को एक काफ पहुँची, वहाँ जाकर उस देश सफ़ेद को बताया जिसने, और वहाँ सब परियों को बंद किया हुआ था कि मलका बदर जमाल जो हमसे जुदा होगी झील में, कोई पता नहीं झील में डूब किया हुआ। देव वहाँ से तलाश के लिए ढूंढने के लिए निकल आए। यहाँ कर पहुँचे, पानी जा रहा है नाला। उस वक्त ये पानी यहाँ से नीचे नहीं जा रहा था, यहाँ एक पहाड़ी थी, यहाँ से झील बंद थी, बड़ी झील थी, ऊँची झील थी, ऊपर तकरीब भरी हुई थी। पानी वहाँ से एंट्री होकर जा रहा था नीचे की तरफ। फिर देव ने यहाँ से अपनी एड़ी लगाकर इस पहाड़ को, ये झील को यहाँ से तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि देव ने कहा कि शायद ये झील खाली हो जाएगी, तब जो परी का पता चल जाएगा। नारान में तूफ़ान गया, फ्लड। वहाँ जाकर जब नारान के अंदर पहुँचे तो परी और शहज़ादे ने यहाँ से तूफ़ान जाता हुआ देखे। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। उस ज़माने में दुआएं जल्दी कबूल हो जाती थी। इस नारान के अंदर ज़मीन में एक पहाड़ बन गया, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, गार। जिस गार के अंदर परी और शहज़ादा भी दोनों छुप गए। दाएँ बाएँ तरफ सैलाब गुजर गया। गार अभी भी मौजूद है, सैफुल मुल्क होटल के बिल्कुल नीचे है, सामने बहुत लंबी गार है। देव सवे जो था भाइयों जिसने ये झील को तोड़ा, वही देव परी को ढूंढा ढूंढा देव सही में जाकर वो पहाड़ के साथ पहाड़ बन गया, पत्थर बन गए परी की सदमे से। परी और शहज़ादा काफ़ी अरसा गार के अंदर छुपे रहे। बाद में जो जिन उनके कब्ज़े में थे, जिन्होंने परी को और शहज़ादे को बताया कि आई तो देव जो था वो ख़त्म हो चुका, अपने मुल्क में जो वापस जा सकते। उन जिन्होंने सर जी परी को और शहज़ादे को दोनों को निकाल कर उन्होंने लेकर मिस्र को पहुँचाया। इसके नाम की वजह थी, झील का नाम जो था मशहूर हुआ, इसकी तारीफ़ बनी है। जनाब आपने जो भी मेरे मेहमान भाइयों ने यहाँ पे आना है, और मेरा नाम है मोहम्मद हनीफ, मुझे यहाँ पे ज़रूर मिलकर जाना है। मुझे यहाँ से स्टोरी मेरे से सुनकर ज़रूर जाना है आपने। और बहुत अच्छी जगह है और बहुत दूर दूर से लोग और ये झील देखने आते हैं। नहीं भाई गलत कहते हैं, सच्चे ज़माने की बात है, उस दौर में हर चीज़ बातें करती थी। देखो कोई चीज़ बनी बनाई होती है उस पर लोग यकीन करते हैं। ये कुदरती बात मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उस दौर की बात है। उस वक़्त यहाँ इंसानों की बादी नहीं होती थी, बहुत पुरानी बात है। देखो हर चीज़ अल्लाह किसी ज़रिए से बनाता है, इसका भी कोई ज़रिया अल्लाह करिए, अल्लाह ने बनाई है ना, हमने तो नहीं बनाया ना, हमने इसकी। ये पुरानी स्टोरी है, पुरानी बात है, सीने पे सीने चली आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।